Okay, so good morning, students. I hope I am audible to all of you. Now we will start the session. Almost 15 to 17 students have already joined. So, uh, the session is particularly related to RCT preparation strategy and about the RRU admission process. Okay. In this session, we will discuss all these things, and students can ask any kind of doubts related to their preparation. Okay, and this session is being conducted by RCT Prep Academy, which is a private edtech company to help students prepare for RRU RCT examination. Okay, so now I am open to take the doubts of the students and about the examination dates. So let me tell you that for RCT UZ, the examination is on 7th June, and for RCT PG, the examination is scheduled on 21st June. And if we talk about the application form dates for RCET UG, the last date for application form is 31st May, and for RCET PG, the application last date for application forms is 15th June 2026. Okay, and for D2D and all, you guys can check RRU website. Okay, so now the students can ask the doubts. Okay, so one by one, you can ask doubts. You unmute yourself, then ask the doubt. This would be a great way to conduct the session. Can you guys unmute yourself? Just let me know in the chat box if I am audible clearly. What setup will see? I won't be answering to any DMs. What you guys should do? You should unmute yourself, then ask the doubt. Hello, Hello. hello, sir. I am Harsh. Yes, Hers. Hers, Sir, you I just can, want, you can switch on your camera, Hers. uh, yeah, it is important to switch on. Yes, you can. Means I just wanted me to know that the courses means subjects See, you you have are given having some in the background course. noise. Please change the place. So I'm not able to see the screen. No, we are not sharing anything on the screen. We are just sharing that RCT preparation strategy session 2. You can see that, I guess. Hello. Hello. Yes, Arts. Sir, I just wanted to know that the subjects which you have given in the course means that much is okay, or we have to do more subjects. That's more than sufficient. Their previous year question papers is also provided, and the study materials for all these three domains. 10 mock tests you are already getting. Topic wise questions are also there. So everything is there. Okay. See, those who want to switch on their cameras, they can. If they are having no background noise, then they can switch on the cameras. Yes, Kavit Singh, what is your doubt? What setup will require to give RCT examination? Okay, so you just need a laptop and a mobile phone to attend the examination.
That So the mock test you provide is the same level as the RCT examination. yes, absolutely correct. Harshodhan Pawar, what extracurricular and defense related activities are conducted in RRU? Oh, for that matter, you should contact RRU helpline because these are post examination doubts. Yes, any other student? Guys, do not do you guys do not have any question or what? Or are you just facing any issue while unmuting yourself and ask the doubts? Sir, I can ask question. Ah, yes. What's your good name? See, before asking the question, you should introduce yourself and about the course that you are preparing for. Okay, then you can ask the question. Sir, my name is Harshvardhan Pawar. Okay. My question was sir, the RRU का जो एग्जाम होगा 7 तारीख को, सब हम घर पे कंप्यूटर में वेब कैमरा के सामने कर सकते हैं या कि साइबर कैफे में जाना जरूरी है? घर से कर सकते हो, वेब कैमरा होगा और लैपटॉप का मोबाइल का कैमरा होगा, उससे कर सकते हो तुम। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सोनार, वैरा प्रकाश, अक्षत, हिमांशी, हिमेश, जडेजा, जीत, काजल सज्जम, युवा, महती, Manoj Mullai. Okay, so let me tell you about the RCT preparation. See, the thing is कि those who are preparing for RCT UG exam and they have hardly a 9 days left for the examination. Okay, and in this particular scenario, what they should do, they should they must have completed all the study materials that they have or those who are enrolled in our courses. Okay, सो जस्ट रिवाइज द स्टडी मटेरियल्स दैट यू हैव। ओके, बिकॉज आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा वो मटेरियल, एक दो बार पढ़ लिया होगा। अभी आपके पास टाइम है कि आप उसे अच्छे से रिवाइज करो। मनु, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, आप वो मटेरियल्स अपना अच्छे से रिवाइज करो। साथ के साथ आप करंट अफेयर्स पे भी फोकस करो। डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, डेली आपको 2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने वेबसाइट बताई हुई हैं, अफेयर्स क्लाउड एंड जीके टुडे। न्यूज़पेपर्स मैंने बताए हुए हैं, द हिंदू पढ़ सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। डेली आपको 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। उस न्यूज़पेपर से आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वहाँ से तुम्हारे न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पेज से कवर हो जाएगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर से ये इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात रहती है जनरल टेस्ट की, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस आते हैं जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, वो सब आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा और उसके अलावा जो वेबसाइट्स मैंने बताई हुई हैं आप वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये तो बात हो गई आपके स्टडी मटेरियल्स की। स्टडी मटेरियल्स के बाद वी डायरेक्टली जंप टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पी वाई क्यूज आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने भी रिलीज़ नहीं किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन्होंने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसमें बस जो 2 कंपोनेंट हैं, आप 3 कंपोनेंट हैं आपके सिलेबस के, उनमें से बस 2 कंपोनेंट ही दिए हुए हैं। एक लास्ट जो डोमेन स्पेसिफिक का है वो उन्होंने नहीं बताया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अदरवाइज सैम्पल पेपर का मतलब ही ये होता है कि उसमें जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है उसके उससे रिलेटेड सारे सभी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएँ।
ठीक है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन बताए गए हैं बेसिकली। ठीक है, अभी उन्होंने दो कंपोनेंट्स का ही रिलीज किया है। लैंग्वेज का है, जनरल का, जनरल टेस्ट का। ये तो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का, तो बट स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट द डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं? देखो, हमने कुछ मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे और अपने एप्लीकेशन पे, जो कि फ्री मॉक टेस्ट है। उन फ्री मॉक टेस्ट से आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. Can I ask something? But let me finish it first, then you can ask your doubt. Okay, sir. Yeah. उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो जो फ्री मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। जनरल टेस्ट का भी है, डोमेन स्पेसिफिक का भी है, उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट का भी है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी कोर्सेज़ के लिए हमने वहाँ अपलोड किया हुआ है। बीए इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़ फॉर बोथ यूजी एंड पीजी। उसके अलावा एमएससी साइबर के लिए, एमटेक साइबर के लिए, एंड डाटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए भी है। एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, यूजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, बैचलर इन साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम चलते हैं तो हाँ, ये एम कॉम फॉरेंसिक अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का जो कोर्स है, तो उसके लिए भी हमने मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। और वो मॉक टेस्ट आपके आरसीईटी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का जो बैच है, उसमें भी अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt till now? Guys, at least you should respond, because No, sir. yeah, because then only I will be able to know that yes, you are listening to me. Okay, and if we talk about the more mock test, in case if you want to practice more mock tests, then you can enroll in the mock tests which are provided by your RCET Prep Academy. Okay, and those who have joined this session, they can especially avail the discount on the mock test. Okay, and about the preparation strategy session that we are conducting today right now. Okay, see, the thing is ki those, okay, see, if the students ask the doubts, then I will be able to tell them clearly that what you should read, what you should not read. ठीक है, यूजी का we have already covered. ठीक है, अब now let's discuss about RCT PG examination which is scheduled on 21st June, एंड आपके पास अभी आई थिंक 23 days आर लेफ्ट। ठीक है, तो 23 days में व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? द स्ट्रेटजी इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर आपने रीडिंग मटेरियल अपना कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको फिर से कंप्लीट करें, एक बार उसको अच्छे से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करना है। आपके पास अभी 3 दिन में आप वो अपना मटेरियल से एक बार अच्छे से पढ़ लें। 3 दिन नहीं तो आप 6 दिन ले सकते हैं। 2 दिन, 3 दिन आपके ये डोमेन स्पेसिफिक के लिए, और 1 दिन इसका आपका जनरल टेस्ट का, और 1 दिन फिर आप दे सकते हैं लैंग्वेज के लिए। देखो, लैंग्वेज के लिए 1 दिन सफिशिएंट रहेगा, बट अगर हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट में 2-3 पोर्शंस आ जाते हैं। एक आपका रीजनिंग का आ जाता है, उसके बाद एप्टीट्यूड का आ जाता है, उसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का आ जाता है, एंड देन करंट अफेयर्स का आ जाता है। तो इसके लिए आप 2 दिन दे सकते हैं। ठीक है, 3 दिन आप डोमेन स्पेसिफिक के लिए दे सकते हैं, और 1 दिन जो बचता है आपका, वो आप लैंग्वेज के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 डेज में आपको अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जब एक बार ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 2 दिन आपको रिवाइज करने के लिए देने हैं, तो टोटल हो गए आपके 8 डेज। ठीक है, अब 8 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपको एटलीस्ट कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने हैं। डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है।
तो डेली एक एक मॉक टेस्ट आप दोगे तो 18 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अभी आपके पास लास्ट में बचते हैं 5 दिन, ठीक है। उन लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है कि जो भी आपने मटेरियल अब तक पढ़ा है उसको फिर से आप रिवाइज करो। जैसे जैसे मटेरियल्स रिवाइज करते जा रहे हो वैसे वैसे तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। मॉक टेस्ट में हमने री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन भी दे रखा है। आप मल्टीपल टाइम्स तक अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहे हो लास्ट के 5 डेज में, साथ के साथ आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। और उनको एनालाइज करते रहो। जैसे ही तुमने आज एक मॉक टेस्ट दिया है, लाइक जो मैंने आपको 10 डेज का शेड्यूल बताया है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद आपको उसको एनालाइज करना है। क्योंकि अगर आप उसको डिले करेंगे कि चलो मैंने अभी दिन में सुबह मॉक टेस्ट दे दिया है, मैं शाम को एनालाइज करूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। आपने जब मॉक टेस्ट दिया है आपको उसी टाइम उसको एनालाइज करना है, क्योंकि तभी आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि जब आपने मॉक टेस्ट दिया है उस टाइम पे आपको पता रहता है कि हाँ मुझे यहाँ थोड़ा डाउट हुआ था, तो मुझे इस एरिया को अपने को इम्प्रूव करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आप अच्छे से इम्प्रूव करो, ठीक है। तो लास्ट के 5 डेज का आपका स्टडी प्लान फिक्स है। एक दो मॉक टेस्ट आप एंड के लिए रख भी सकते हैं। जैसे हमने अभी 8 मॉक टेस्ट ही अपलोड किए हैं, 2 मॉक टेस्ट अभी तक बाकी रखे हैं। कुछ कोर्सेज के लिए एक रखा है, किसी के लिए 2 रखे हैं। तो वो अब एग्जाम से 2 दिन पहले आपको कुछ नहीं करना है। रिवाइज द मटेरियल्स, स्टडी द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड द एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड री अटेम्प्ट दोज मॉक टेस्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये सब आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इस पेपर में क्या होती है, देखो सीट्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अब कौन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर पाएगा, वो पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स से कैसे तुम अच्छा स्कोर करते हो, क्योंकि जब तक तुम अच्छे स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ोगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि तुम यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म ही 5 दिन पहले फिल किया होगा और फिर आप यूट्यूब लेके बैठ गए, तो यूट्यूब में तो इतना वास्ट स्टडी मटेरियल्स वगैरह दिया हुआ है, वो आप कभी कवर कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ लिया तो मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए, बट आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा और किस लेवल का आएगा, ठीक है। मास्टर ही नहीं करनी है तुम्हें सभी टॉपिक्स को लेके। जो जितना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अभी से। क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो यूजी और पीजी कोर्सेज में, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी करने मत बैठ जाना, नहीं तो फिर तुम्हारा एक टॉपिक में पूरा टाइम निकल जाएगा और एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर तुम सोचोगे अच्छा मैंने गलत किया है, जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो भी वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़, इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ 90 प्लस ही जाता है, ठीक है। क्योंकि पेपर लेवल बहुत इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है पेपर, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के लिए, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। टाइम भी काफ़ी होता है, 120 मिनट्स का टाइम होता है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन के लिए जब 1 मिनट से ज़्यादा मिलता है तो बच्चे सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी ईज़ी हो, ठीक है। और मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप क्वेश्चंस तो सारे ही अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। और आप एक एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको एलिमिनेट करना है। अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो या फँस जाते हो, तो इस उस केस में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन-सा मोस्ट सूटेबल हो सकता है। पहले आपको 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना है, फिर उसके बाद जो बचते हैं 2 ऑप्शंस, उन 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो मोस्ट एक्यूरेट हो। इस मेथड से आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जो तुक्काफिकेशन है वो मेथड यूज़ मत करना, क्योंकि उससे एडमिशन नहीं होने वाला है। क्योंकि एक-एक क्वेश्चन को तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा तभी एडमिशन होगा। लाइक किसी कोर्स में 30 सीट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होगा, ऐसा तो है नहीं 40 का हो जाएगा। तो 30 स्टूडेंट्स हैं और मान लो कि आपके कोर्स में 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो आप अदर स्टूडेंट्स से कैसे स्टैंड आउट करोगे?
कोई बच्चा होता है जो मॉक टेस्ट दे के ही नहीं आता है, वो तो पहले ही पीछे रह जाते हैं। जो मॉक टेस्ट नहीं देगा उसका तो सिलेक्शन होना मुझे नहीं लगता हो जाए, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम लेगा वो लेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बार पैसेज को नॉर्मली गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, स्किमिंग के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने हैं। 5 क्वेश्चंस एक साथ देख लो, एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चंस एक बार देख लो, फिर उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने देखा है तो हो सकता है इसका आंसर ये हो सकता है इसका आंसर ये हो। तो ऐसे करके आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 5 क्वेश्चंस का 5 से 10 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा, जिसका रीडिंग हैबिट नहीं है, रीडिंग स्पीड अच्छा नहीं है, ठीक है। सेकंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए मैंने एक पीडीएफ अपलोड की है, वो पीडीएफ आप पढ़ लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उसमें आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस को चूज करना है। जैसे अगर कहीं कोई सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पहले ये चेक करना है कि कहीं उसका नाउन तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होते हैं। अगर उसका जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि Rashtraksha University is a best university in India for national security and policing. ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज इट स्पेशलाइजेज इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस स्टडीज एंड मैनी मोर कोर्सेज, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिए, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें इट दिया हुआ है, ठीक है। और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो हो गया नाउन, ठीक है। उसके अलावा जो इट दिया हुआ है वो हो गया वहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज होगा, तो जो नाउन वाला सेंटेंस है वो फर्स्ट पे आएगा, प्रोनाउन वाला सेकंड पे आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस आपको मैच करते हुए जाना है, ठीक है। आर यू गाइस विद मी टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. गुड, यस सर। ठीक है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मैंने बता दिया है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा मैंने सेकंड आपको बता दिया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपको चेक करना है, ठीक है, कौन सा नाउन आएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो कैन यू गाइस हियर मी नाउ? यस Yes, सर। sir. Sir. ठीक है, तो वी हैव कवर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, देन द सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब नाउ टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके आते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक्स आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से ही कवर हो सकता है। वैसे तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही सारी चीज़ों का, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से अब तक जो भी पढ़ा है वो आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प तो करेगा ही।
बट अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डेवलप कर लेते हो तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे करना है, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आपने साइनो एंटो अच्छे से नहीं पढ़ने हैं तो। जो मैंने अपलोड किए हैं आपको वो तो पढ़ने ही हैं। उसके अलावा जैसे आपने कोई भी वर्ड देखा, ठीक है, उस वर्ड का क्या सिनोनिम्स हो सकता है, क्या एंटोनिम हो सकता है, ये आप गूगल डिक्शनरी से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट पे भी ये ऑप्शन आता है। एक मैरियम वेबस्टर करके डिक्शनरी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डोमेन स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन है। जैसे कोई स्टूडेंट एमएससी साइबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए हमने सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एंड अब हम अगर आगे चलते हैं डोमेन स्पेसिफिक में, तो देखो आपको जो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी बीए इन डिफेंस एंड स्टडी स्टडीज़ और एमएससी और एमए इन डिफेंस एंड स्टडी स्टडीज़, तो उसको, ये कौन है, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। किसने अनम्यूट किया हुआ है ये? ठीक है। तो जैसे बीएससी बी इन डिफेंस स्टडी के स्टडीज़ और एमएससी इन डिफेंस स्टडी के स्टडीज़, तो उसमें देखो डिफेंस और स्टडी स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। डिफेंस में जैसे ये तीन फोर्सेस आ जाती हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो रिसेंट में न्यूज़पेपर में आई है तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जो भी इंडिया में आर्म फोर्सेस हैं, जैसे हाँ हम ले सकते हैं जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल की जितनी भी फोर्सेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूर से देख लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी है। और अभी जितनी भी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन सिंदूर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है आपसे। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ ही लेना एक बार, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चलते हैं तो जैसे कि अभी जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी कोर्सेज के लिए मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग के लिए है, तो ये जनरली क्वेश्चंस आप देख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की से रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, इनको रिप्लेस किया है, ओके। एंड उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो भी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, एनआईए हो गई, ठीक है, और क्राइम ब्रांच हो गई, एंटी करप्शन ब्यूरोज हो गए, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हो गए, नारकोटिक्स टास्क फोर्स हो गई, एनडीपीएस एक्ट हो गया, ये आपको देख लेना है एक बार। यूएपीए का आप देख सकते हैं, ठीक है। जो जो मेजर लॉज हैं वो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। कोई नोट्स बना रहा है इसके लिए या फिर बस आप सुन रहे हो? एनीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Harshvardhan. Yes, sir. ठीक है। एनीबडी एल्स इज मेकिंग नोट्स अदर देन हर्षवर्धन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. ओके गुड गुड, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट में बेसिकली 4 डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही कह सकते हैं, एक तो आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये 4 पे जनरल टेस्ट पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली मॉक टेस्ट में स्टूडेंट सारे डोमेन्स में अच्छा कर लेते हैं, बट एक जो उनका रहता है वीक पॉइंट
वो रहता है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के लिए आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप उसे पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए जो हमने कंटेंट अपलोड किया है आप वो देख लो, ठीक है। उसमें मोस्टली कंटेंट कवर हो गया है। अदरवाइज जीके तो इतना वास्ट है कि आप कभी पढ़ ही नहीं सकते पूरा जीके, ठीक है। किसी के पास अगर लूसेंट करके एक बुक आती है जनरल नॉलेज के लिए, वो है तो आप वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा हम देखते हैं रीजनिंग के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में आपको क्या करना है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। ये आपको देख लेना है क्योंकि इनसे जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी आता है, एनालॉजी आप देख लेना। फिर अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, ब्लड रिलेशंस वाला जो रीजनिंग में पोर्शन होता है, ये सब पूछा जाता है जनरली। और ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट आता नहीं है, बहुत ईजी आता है। अगर आपको बेसिक की नॉलेज है तो उससे हो जाएगा आपका काम, ये है। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है इनका। गूगल पे काफ़ी वेबसाइट्स हैं और हमने जो कंटेंट दिया है उनमें एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। नंबर ऑफ़ डेज़ को मैंने बता दिया आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अगर अभी किसी को कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। सी, यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ देन आस्क द डाउट। हेलो सर। हेलो यस सर्स। सर, मेरे को ये डाउट था, जो आपके नोट्स है वो अच्छे खासे प्रॉपर भी है और लंबे भी है। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो अच्छे खासे नॉलेज वो सब मिल जाती है, पर मतलब उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत लेंदी भी नोट्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका एक सेशन शेड्यूल्ड है, किस डेट को है वो। एमएससी साइबर के लिए कोई हमने सेशन शेड्यूल किया हुआ है, कोई बताएगा मुझे किस डेट को है वो? काजल, आपको आइडिया है? 30 को है ठीक। मेंटरशिप। अच्छा, 30th मई को है। सॉरी, कल है 30 में। ठीक है। तो हर्ष, अपना ये डाउट उस सेशन के लिए आप रिजर्व रखो, ठीक है। वो मैम आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगी। सर, वो आपने न्यूज़पेपर के लिए दो नाम बोले थे ना, वो आप फिर से रिपीट कर सकते हो? मैं आपको चैट बॉक्स में ही वो फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। एक द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है सेकंड वन। सर, मॉक टेस्ट पेपर्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यस एब्सोल्युटली। सर हमें ये मटेरियल कहाँ से मिल सकता है? मटेरियल्स आपको ये प्रिपरेशन बैच में मिल सकता है, वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम, आपको वेबसाइट और ऐप का तो पता ही होगा अगर आपने ये सेशन ज्वाइन किया है तो। ठीक है, आई थिंक मैंने सारा कुछ अब तक बता दिया है, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप बताइए। Hello, sir. यस प्लीज़। Sir, I am preparing for the BBA program. Can you tell me about the specialization that RRU is offering corporate security management? BA, which course are you preparing for? BA in security management? Not BBA. BBA corporate security management? Yeah. अच्छा, तो ये स्पेशलाइजेशन ही तो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें अगर कुछ और होगा तो आपको यूनिवर्सिटी में ही बात करना होगा, उसके लिए मुझे इस कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। No, सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्पेशलाइजेशन है इसमें एक्चुअली इससे थोड़ा डिफरेंस क्या है, इस स्पेशल में होता क्या है कोर्स वगैरह में? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा इसका कोई आइडिया नहीं है। आप एक बार RIU हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें और आफ्टर एडमिशन आप पूछ सकते हैं। और आप एक काम करो, आप BBA कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स का नाम लिख के उसके बाद में @RRU गूगल पे सर्च करो, आपको उस कोर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके सर। सर जो कट ऑफ है इस कोर्स का, एग्जाम का, वो सारे कैटेगरी स्टूडेंट के लिए सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा?
सभी कैटेगरी के लिए सेम कैसे हो सकता है? ये मेरा क्वेश्चन था सर। सभी कैटेगरी के लिए सेम क्यों होगा? इंडिया में एक रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है। ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन है, एससी एसटी के लिए अलग रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग रिजर्वेशन है, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो सर सेम। तो मैं ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूँ और मैंने मॉक टेस्ट दिया था, मुझे 90, मैंने 90 स्कोर किया था। तो आप बता सकते हैं कि ओबीसी एनसीएल के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है? अगर आपने 90 स्कोर किया है तो अच्छी बात है। देखो, जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहो। न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ जो मैंने बताई हैं उनको तो भूलना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है। ओके बट सर। जो लेस देन 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है। तो या तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें या फिर आप कुछ ना करें, क्योंकि बिलो 90 नो स्कोप इज़ देयर। हर्षवर्धन पवार, आप मॉक टेस्ट एनालाइज करो, रीडिंग मटेरियल जो आपको दिया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये है। तो रीडिंग मटेरियल कहाँ पर मिलेगा? वहीं, अगर आपने प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया हुआ है आर सी टी प्रेप अकेडमी पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सर मैंने मॉक टेस्ट वाला का पेड किया हुआ है, प्रिपरेशन वाला कौन सा होगा, कुछ आइडिया दोगे? अ, आप एक काम करो, आप वेबसाइट विजिट करो या फिर एप्लीकेशन विजिट करो। वहाँ आपके कोर्स का जो नाम है उस पर क्लिक करो। ठीक है, वहाँ आपको प्रिपरेशन बैच मिल जाएगा आपका। आर सी टी सिलेक्शन बैच 2026 के नाम से होगा आपके कोर्स में। हेलो। नहीं तो आप मुझे हेलो। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लेना, आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यस, हु इज़ आस्किंग? सर हर्ष। यस हर्ष। सर मैंने एनरोल किया एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए, पर उसमें डीएसए की नोट्स नहीं है। डीएसए कौन सा है? डाटा स्ट्रक्चर। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो एक बार देख लेंगे, अपलोड कर देंगे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो। और कुछ, इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट देन डू लेट मी नो। महती हरवलकर, महती, डू यू हैव एनी डाउट? हु इज दिस MNV? व्हाट्स योर गुड नेम MNV? हेलो। Manvi, Manvi, okay. And which course are you preparing for? BSc in Defense and Strategic Studies. Okay, good. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप दिस सेशन। आई होप ऑल द क्वेरीज आर रिजॉल्व नाउ। So, हेलो सर। यस शिवांशी। हेलो सर, वो मेरा क्वेश्चन था कि अब जो डिकोडिंग का पार्ट आता है उसमें तो हमें पेपर की ज़रूरत होगी ना, तो क्या वो अलाउ करेंगे हमें? पेन पेपर के लिए शायद वो आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि हाँ। अभी वो डिटेल्ड गाइडलाइंस को रिलीज करेंगे अभी ईमेल के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। और सर वो एमएससी और डेटाबेस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए मुझे मतलब मैंने एमएससी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक में अप्लाई किया है, तो आपने बोला था कि वो सब एग्जाम एक ही एग्जाम आती है, तो क्या मुझे फिर से वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? देखो, ये कोर्सेज अलग अलग हैं, इनका कॉमन एग्जाम होता है, बट अगर आपको एडमिशन अलग अलग कोर्सेज में लेना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने होंगे। सर उसकी एग्जाम एक ही हो फिर भी, हम्म। तो फिर उसमें कैसे सब मतलब एडमिशन मिलेगा? एक ही एग्जाम है तो अलग अलग कोर्सेज के लिए। मेरिट लिस्ट डिफरेंट प्रिपेयर होंगी। ओके सर, थैंक यू। यस, एनी अदर स्टूडेंट?
सर ये यूजी का मॉक टेस्ट कब है? किसका? किसका? यूजी वालों का मॉक टेस्ट कब है? यूजी वालों का मॉक टेस्ट कब? यूनिवर्सिटी जो मॉक टेस्ट लेती है वो एग्जाम से एक दो दिन पहले होगा। और कुछ आपको डाउट्स हैं? आई थिंक ऑल द क्वेरीज हैव बीन रिजॉल्व नाउ। थैंक यू guys for joining the session, and I hope you are preparing well and you will score good marks in RCT examination. But don't forget to practice mock test and prepare with exam oriented study materials only. Okay, thank you guys. Have a good day. Thank you, sir. Welcome, थैंक थैंक यू सर। welcome, Thank you, sir. welcome, dear. I hope the session will help you in your examination as well. Take care. All the very best for the examination. I hope you all will secure admission in Rashtriya Shiksha University Gandhinagar campus. I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Firstly, we'll have to stop the recording.